So, hi everyone. As you all are aware, in last two lectures we have covered the topic assignment, and the chapter is assignment and sequencing. So we are left with one more topic to be covered, that is sequencing part. Now, as we focus on this topic sequencing, there are two types of problem that you are supposed to tackle. Under sequencing, there is two machine sequencing and there is three machine sequencing. Our today's lecture's agenda would be to cover two machine sequencing. तो आज पूरा का पूरा जो स्कोप ऑफ दिस लेक्चर है वो है टू मशीन सीक्वेंसिंग का, हाउ टू सॉल्व टू मशीन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द स्टेप्स. Okay, so I will take you through one very simple example and you all can just understand what do we mean by two machine sequencing first of all. So let's read this example. Suppose we have two machines, A that is cutting and B that is sewing machine, and there are two items 1 and 2 to be processed on this machine in the order AB. So if you read carefully the statement, it says you have two items, item 1, item 2, and there are two machines, machine A and B. Machine A is cutting and machine B is sewing, and every item has to pass through both this machine. पहले compulsory machine A में जाना पड़ेगा and then machine B में. Okay, you cannot just jumble up the sequence like B में पहले और फिर A में. You cannot do something like that because question is very clear in the order AB. The machine can handle only one job at a time, and the time taken in hours by machine to complete the job is given by the following table. So this is also very important that machine can only handle one job at a time. So अगर तुम item 1 को अगर machine में डाल देते हो, so then item 2 has to wait. अगर तुम item 2 को machine A में डाल देते हो, तो item 1 has to wait. So one machine can handle one item at a time. Okay, so please understand this very well. So if we analyze this question in detail, you are left with two options. तुम्हारे पास दो item है, item 1, item 2. So दो option है. The first option is process 1 and then 2. मतलब item 1 को पहले start करो process करना और फिर उसके पीछे item 2 को, या फिर process 2 and then 1. It means पहले item 2 को तुम machine A में डाल दो और एक बार उसका काम हो जाता है तो फिर item 1 से start करो. Now let us understand this option first. Process item number 1 and then 2. मतलब यहाँ पर जो item 1 है उसको तुम पहले लोगे और फिर item 2 को तुम प्रोसेस करने के लिए लोगे. ठीक है? So understand this example very well. So assume that you are a manager in this factory and in front of you there are two machines. The first machine A is a cutting machine and machine B is a sewing machine. And there are two items, these are rolls of clothes which has to pass through, let's say, these two machines. Okay, and let's assume you are holding a stopwatch. Now वो stopwatch में let's say start करते हैं 00 पे तुमने start किया है. You are going to count the number of hours taken to complete this entire process. So please understand this very carefully. So हमारा first option क्या है कि item 1 को हम machine A में process करने के लिए डाल देंगे. So तुम्हारी जो stopwatch है उस पे count होगा 0 का. So the moment you process first item in machine A, how many hours it will take? So अगर ये table तुम ध्यान से देख रहे हो, so item 1 और machine A, so it is going to take 6 hours. So अगर तुम अपने first item को ये machine में process के लिए डालते हो, so it is going to take 6 hours to come out of this machine. So तुम ये table देखो यहाँ पर, मैंने कैसे ये टेबल को रिप्रेजेंट किया है. सो आइटम, सो ईयर 1 2 जो भी आइटम हमने यहाँ पे लिखी है, एंड यहाँ पर कॉलम हेडर्स में मशीन ए एंड मशीन बी, एंड मशीन ए के अंदर दो कॉलम है इन आउट. इन मतलब एट व्हाट टाइम दे आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस एंड एट व्हाट टाइम दे आर गोइंग टू फिनिश द प्रोसेस, एंड मशीन बी अगेन सेम कॉलम इन एंड आउट. सो ये जो फॉर्मेट है टेबल का, दिस इज गोइंग टू रिमेन सेम फॉर ऑल द सॉल्यूशंस. ओके, नाउ तुम कौन से सीक्वेंस में अपने आइटम्स को प्रोसेस कर रहे हो? तो हम पहले 1 को प्रोसेस कर रहे हैं एंड देन 2 को प्रोसेस कर रहे हैं. सो तुम्हें अगर याद है तो मैंने तुम्हें कहा था यू आर होल्डिंग अ स्टॉपवॉच व्हिच इज हैविंग अ काउंट ऑफ 0 एट राइट नाउ एंड यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट आर गोइंग टू बी टेकन. सो द मोमेंट यू स्टार्ट फर्स्ट आइटम इन मशीन है, तुम्हारी क्लॉक पे काउंट होगा 0 का, और जैसे ही वो आइटम ये मशीन से प्रोसेस होकर बाहर निकलेगी, इट इज गोइंग टू बी 6 आवर्स ऑन योर क्लॉक, बिकॉज तुम्हारी फर्स्ट आइटम मशीन ए पे 6 आवर्स ले रही है. ये क्वेश्चन ने तुम्हें दिया है.
So first item is going to take 6 hours on first machine. Okay, जैसे ही फर्स्ट मशीन ये आइटम से फ्री हो जाएगा, ये पर्टिकुलर क्लोथ के पीस को बाहर निकाल देगा प्रोसेस करके, यू आर गोइंग टू प्रोसेस इमीडिएटली द नेक्स्ट आइटम, आइटम नंबर 2, और वो तुम प्रोसेस करने डालोगे आफ्टर 6 आवर्स. सो जब भी आइटम नंबर 2 मशीन ए के अंदर जाएगा काम करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, तभी याद रखना तुम्हारी वॉच पे कितना टाइम दिख रहा होगा, 6 आवर्स ऑलरेडी स्पेंट. यू स्टार्टेड एट 0, 6 आवर्स आइटम 1 को लगे, तो जब 6 आवर्स तुम्हारी क्लॉक पे दिखेगा तब आइटम 2 मशीन ए में इन जाएगा. सो यहाँ पर तुम्हें इन में 6 लिखना है, which is this 6 of out. So I hope you are able to connect this two. And the moment you spend this, the moment you process this second item in machine A, तुम्हारे पास मशीन आइटम नंबर 2 मशीन ए, नंबर क्या है यहाँ पर, it is 4 hours. It means you will spend another 4 hours to process this piece of cloth in machine A. So यहाँ पर जो तुमने 6 लिखा था in time में, उसमें तुम 4 को ऐड कर दोगे, so तुम्हारी क्लॉक पे अभी टोटल टाइम दिखेगा 10 hours का. So I hope you have understood this. I am repeating it again. वापस मैं यहाँ पे शॉर्ट में तुम्हें रिपीट करवा देता हूँ. So first तुम आइटम 1 को डाल रहे हो, so 0 से काउंट तुम्हारा स्टार्ट होगा. Item 1 machine A, the time taken is 6 hours. So 0 plus 6, यहाँ पर तुमने आउट में 6 लिखा. Now machine A में से जब पहला आइटम बाहर निकलेगा तभी तुम उसमें आइटम नंबर 2 डाल सकते हो प्रोसेस करने के लिए. So यहाँ पर तुम सेम नंबर ये कॉपी कर रहे हो 6, और आइटम नंबर 2 को मशीन ए पे कितना टाइम लग रहा है, सो 4 आवर्स. सो यहाँ पर 6 plus 4 10 hours इज टाइम टेकन. सो यहाँ पर ये आउट होगा 10 घंटे के बाद. सो मशीन ए में दोनों आइटम प्रोसेस होके आफ्टर 10 hours दे विल बी रेडी. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर स्टेप. ओके, नाउ इवेल्युएट मशीन बी. मशीन बी क्या करेगा, सो यहाँ पर जो सुइंग मशीन है वो ऐसे ही खाली थोड़ी बैठा रहेगा. वो क्या करेगा, तो जैसे ही फर्स्ट आइटम 6 घंटे बाद मशीन से बाहर आती है, सुइंग मशीन पे तुम काम चालू कर सकते हो. सो तुम्हारा जो फर्स्ट क्लॉथ था वो 6 आवर्स पे बाहर आया, तो तुम इमीडिएटली उसको क्या करोगे, तो उसको तुम सुइंग मशीन में बोलोगे, अभी भाई तेरा काम सुइंग मशीन में है तो तू मशीन बी के पास जा, वहां पर काम चालू कर. सो दिस पीस ऑफ क्लॉथ विल स्टार्ट getting processed on machine B. Okay, so you will not wait कि जब तक दोनों पीस ऑफ क्लॉथ ये कटिंग मशीन से बाहर नहीं आ जाते तब तक तुम स्विंग मशीन को ऐसे ही बैठ के नहीं रखोगे. You will try to work as fast as possible. तुम्हारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है प्रोसेस को जितना जल्दी खत्म कर सकते हो करना. ओके, सो यहाँ पर तुम जैसे ही फर्स्ट आइटम मशीन ए से बाहर आती है उसको तुम मशीन बी में इन कर दोगे. So first item in machine B in will be at 6. So ये तुमने उसको अंदर कर दिया यहाँ पे. Now item number 1 in machine B, how much time does it take? So it takes 5 hours. So जैसे ही तुमने 6 घंटे बाद ये क्लॉथ के पीस को मशीन बी में डाला, वो 5 घंटे लेगा प्रोसेस करने में, और तुम्हारी वॉच पे जब 11 घंटे दिखेंगे 11 hours spent, तब वो जाके बाहर निकलेगा. So I hope you have understood this. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ. जैसे ही फर्स्ट आइटम मशीन ए में से बाहर निकलेगा 6 पे, तुम उसको इमीडिएटली मशीन बी में इन कर दोगे, बिकॉज फर्स्ट आइटम फ्री हो चुका है और मशीन बी भी खाली पड़ा है. तुम इमीडिएटली उसको वहां पर प्रोसेस करने के लिए भेज दोगे. और फिर फर्स्ट आइटम को बी मशीन पे कितना टाइम लगता है, तो उसको वहां पर 5 hours लगते हैं. तो स्विंग मशीन अगले 5 घंटे तक काम करेगा फर्स्ट आइटम पे. नाउ क्वेश्चन कम्स, सेकेंड आइटम का क्या होगा. सो सेकेंड आइटम के लिए यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन एंड यू हैव टू ऑब्जर्व इन माइन्यूट डिटेल कि वो सुइंग मशीन में कब जाएगा. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, सेकेंड आइटम मशीन से बाहर कब निकल रहा है, तो 10 घंटे बाद बाहर निकल रहा है. यहाँ पर देखो आउट टाइम में तुमने 10 लिखा था, तो 10 hours जब तुमने 0 से स्टार्ट किया था, जब 0 से स्टार्ट करके 10 घंटे खत्म हुए, तब आइटम नंबर 2 जो है वो मशीन से बाहर निकल के रेडी पड़ा है. And he is waiting, this item is waiting कि वो मशीन B उसको प्रोसेस करने के लिए ले अंदर. बट क्या वो 10 hours पे ले सकता है मशीन B, स्विंग मशीन? सो नो, द आंसर इज नो, बिकॉज 11th hour तक वो मशीन B आइटम 1 पे काम कर रहा है. सो दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ क्लॉथ हैज टू वेट फॉर सम टाइम, जब तक मशीन B फ्री नहीं हो जाता.
बिकॉज तुम अगर रीड करोगे तो द मशीन कैन हैंडल ओनली वन जॉब एट अ टाइम लिखा है. सो तुमने जब फर्स्ट आइटम को मशीन बी पे डाल दिया था 6 आवर्स खत्म हुए तब, अगले 5 घंटे तक वो प्रोसेस उस पे चलने वाला था. तो मतलब जब 11 आवर्स खत्म होंगे तब ये मशीन बी फ्री होगा. And the moment at 11th hour this machine B is free, it will immediately take this piece of cloth inside और वो उसको प्रोसेस कर देगा. So item number 2 को मशीन B पे प्रोसेस होने के लिए कितना टाइम जाता है? तो it takes 7 hours. So जैसे ही 11 आवर पे तुम उसको अंदर ले लोगे प्लस 7 आवर्स करो तो वो 18 आवर्स पे बाहर आएगा. मतलब जीरो से जो तुमने स्टार्ट किया है वो क्लॉक तुम्हारा कंटिन्यूसली तुम बढ़ाते जा रहे हो और नोट डाउन करते जा रहे हो कि कब कौन सा आइटम खत्म होकर बाहर आ रहा है, और टोटल 18 आवर्स पे तुम्हारे सारे आइटम्स दोनों मशीन से बाहर आके रेडी होंगे यहाँ पर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोसेस. ओके, सो नाउ अगर तुम ये सीक्वेंस फॉलो करते हो, आइटम नंबर 1 एंड देन आइटम नंबर 2, तो तुम्हें टोटल कितने 18 आवर्स जाते हैं. Now what was the alternative for you? तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव था कि भाई पहले आइटम नंबर 2 को प्रोसेस करो और फिर 1 को प्रोसेस करो. सो अगर वैसा करते तो क्या चेंज आता? इन आउट टेबल देखते हैं. सो आइटम नंबर 2 पहले प्रोसेस कर रहे हैं. सो अगेन वी विल रीस्टार्ट आवर क्लॉक 0 पे. अब आइटम नंबर 2 ऑन मशीन ए, तो कितने घंटे लगेंगे उसको? तो इट विल टेक 4 आवर्स. सो 0 से स्टार्ट करोगे तो मशीन ए में से आउट होने में उसको 4 आवर्स लगेंगे. नाउ इमीडिएटली जैसे ही 4 आवर्स पे आइटम नंबर 2 का काम खत्म होगा तुम आइटम नंबर 1 को मशीन ए में डाल दोगे. नाउ आइटम 1 को मशीन ए में कितना टाइम लगता है? तो इट विल टेक 6 आवर्स. सो 4 आवर्स से और आगे 6 घंटा उसको काम चलाना है. सो 10 आवर्स पे वो बाहर आएगा. सो मशीन ए तुम अगर ऑब्जर्व करते हो तो दोनों आइटम का काम टोटल 10 आवर्स में खत्म कर रहा है, जो यहाँ पर भी इट सीम्स सेम, कुछ फर्क नहीं. ओके, नाउ लेट्स इवैल्यूएट आइटम नंबर लेट्स इवैल्यूएट मशीन बी. मशीन बी क्या करेगा? सो जैसे ही उसका फर्स्ट आइटम 2 4 घंटे के बाद बाहर आ जाएगा, इमीडिएटली वो उसको यहाँ पर इन कर लेगा. स्विंग मशीन विल स्टार्ट इट्स प्रोसेस. नाउ आइटम नंबर 2 मशीन बी में कितने घंटे ले रहा है? सो इट टेक्स 7 आवर्स. सो जैसे ही 4th आवर पे तुम आइटम 2 को अंदर डाल दोगे, 7 आवर्स ऐड कर दो, सो 11 आवर्स होते हैं. 11 आवर्स पे आइटम 2 का काम मशीन बी पे खत्म हो जाएगा. नाउ अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो तुम डिसाइड करते हो मशीन बी पे इनका, दैट इज वेरी क्रिटिकल. नाउ व्हाइल डिसाइडिंग दिस यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, जैसे ही ये सेकेंड आइटम मशीन बी से बाहर निकला 11th आवर पे, क्या नेक्स्ट आइटम चालू कर सकते हो तुम? सो चेक करो यहाँ पर आइटम नंबर 1 मशीन ए से कितने टाइम पे बाहर आ रहा है. सो इट इज कमिंग आउट एट 10th आवर. और मशीन बी फ्री कब हो रहा है? सो मशीन बी फ्री हो रहा है 11th आवर पे. सो ऑब्वियसली मशीन बी काम कब चालू कर पाएगा? 11th आवर पे. ये आइटम नंबर 1 10th आवर पे आउट होके यहाँ पे वेट भी कर रहा होगा. मशीन बी इज नॉट फ्री, तो दैट पीस ऑफ क्लोथ हैज टू वेट हियर. और जैसे ही मशीन बी फ्री होगा, कौन से आवर पे फ्री होगा? 11th आवर पे. तो जैसे ही मशीन बी फ्री होगा इट विल स्टार्ट नेक्स्ट जॉब. तो यहाँ पर इन पे तुम्हें 11 लिखना है. सो अगर ये कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए ये चीज समझना, सो मैं तुम्हें ट्रिक देता हूँ यहाँ पर. तुम्हें क्या करना है? सो तुम्हें सेकेंड मशीन में जब भी इन टाइम लिखना हो, सो यू हैव टू डिसाइड मैक्सिमम नंबर. मैक्सिमम नंबर कौन सा? तो यहाँ पर आउट टाइम में देखो ये 10 है, और मशीन बी के प्रीवियस जॉब में आउट टाइम देखो ये 11 है. तो 10 और 11 में मैक्सिमम कौन सा है? सो दैट इज 11. सो तुम्हें यहाँ पर 11 लिखना है. एंड जब तुम यहाँ पर इन टाइम में 11 लिख रहे हो, नाउ ऑब्जर्व आइटम नंबर 1 और मशीन बी कितना टाइम जा रहा है उसको? 5 आवर्स. सो यहाँ पर 11 में 5 ऐड करके ये 16. सो अगर तुम अपनी सीक्वेंस चेंज कर देते हो, जैसे अगर सीक्वेंस तुमने आइटम नंबर 2 को तुमने पहले डाला और फिर आइटम नंबर 1 को डाला, सो तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो 16 आवर्स में खत्म हो रहा है. सो कैन यू कंपेयर द टू ऑप्शंस दैट यू आर डिस्कसिंग राइट नाउ? दिस वाज योर ऑप्शन नंबर 1 जहां पर 18 आवर्स जाते हैं, एंड दिस वाज योर ऑप्शन नंबर 2 जहां पर 16 आवर्स जाते हैं. सो कौन सा वाला सीक्वेंस तुम्हारे लिए बेटर है? सो इट इज बट ऑब्वियस जो सेकंड सीक्वेंस है ये आइटम 2 एंड देन 1, ये तुम्हारे लिए बेटर है बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा टाइम जो है वो मिनिमम है. एंड सीक्वेंसिंग में याद रखना हमारा हर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव होगा टाइम को मिनिमम करना. सारे के सारे क्वेश्चन टाइम पे ही होंगे और तुम्हारा हर बार जो ऑब्जेक्टिव है वो होगा मिनिमाइज करना.
So definitely यहाँ पर the best sequence, the optimal sequence is item number 2 and then item number 1. But अभी हर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा था जहां पर सिर्फ 2 ही आइटम थे, बट देन अगर बहुत सारे आइटम हुए तो फिर तुम कैसे सीक्वेंस डिसाइड करोगे, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है जो तुम्हें सीखना है. एंड दैट स्टेप वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेक्स्ट एग्जांपल. ये जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया है, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट कि हमें क्यों सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या क्या स्टेप काम के हैं. जैसे कि यहाँ पर तुम क्लियर कट समझ सकते हो कि अगर तुम रैंडमली कोई भी सीक्वेंस में अगर जॉब्स को प्रोसेस करते हो तो यू विल टेक अननेसेसरीली एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टाइम विच इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर तुम स्मार्टली अगर सीक्वेंस डिसाइड करते हो जैसे कि आइटम 2 एंड देन आइटम 1, देन यू विल सेव सम अमाउंट ऑफ टाइम हियर, एंड दैट्स व्हाई सीक्वेंसिंग इज सो इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट एग्जांपल. बट नेक्स्ट एग्जांपल अब जब डिस्कस करेंगे, इट कैन बी अ बिट हार्ट ब्रेकिंग फॉर ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स. सो सिंस क्वारंटाइन पीरियड इज गोइंग ऑन, तुम शायद मुझे गाली दे सकते हो या फिर तुम्हें मेरे लिए नफरत और बढ़ सकती है. So I'm giving you alert from the beginning itself, but let's start. Just to add a bit of fun to this lectures, I have added this example here and to explain you steps as well in detail. But again remind you, don't get disturbed or distracted. So let's say suppose you are running a restaurant and at present you have 5 different orders in hand as follows. So नीचे यहाँ पे मैं जो orders दे रहा हूँ वो time दिखा रहे in minutes. So when you go to kitchen, inexperienced chef is confused with which order to cook first and ask for your help. So तुम्हारा एक रेस्टोरेंट है और वो रेस्टोरेंट में एक शेफ है, उसको अभी 5 डिफरेंट टेबल्स पे 5 अलग अलग ऑर्डर्स दिए हैं और वो 5 ऑर्डर्स में से कौन सा उसको पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए. So he is confused about the sequence, in which sequence he has to take the orders. And now you are checking with him कि तुम उसको हेल्प करने जा रहे हो कि भाई कौन से सीक्वेंस में तुम ऑर्डर प्रोसेस करो. Now when you look at the orders, what you are finding. So you are finding the first order is of pizza. So पिक्चर पे ध्यान मत देना, टेबल और इंफॉर्मेशन पे ध्यान दे दो. So हर एक ऑर्डर को 2 प्रोसेस लगेगी. फर्स्ट इज कुकिंग एंड नेक्स्ट इज सर्विंग. Okay, and the numbers here mentioned are nothing but time taken to complete the process. So pizza बनाने के लिए cooking time is 10 minutes and serving को 5 मिनट जाते हैं. Another order is of bread. So bread में cooking करने के लिए 8 minutes and serving के लिए 3 minutes जाते हैं. Then next order is पाव भाजी, जहाँ पर cooking के लिए 9 minutes and serving के लिए 4 minutes. The next order is biryani, जहाँ पर cooking के लिए 12 minutes and serving के लिए 2 minutes. And the last order is of brownie, जहाँ पर cooking के लिए 6 minutes जाते हैं and serving के लिए 1 minute जाता है. So I hope you have followed the information and not the images. And even if you have followed the images, then you can just check out this table once again. And I'm repeating, ये पूरा टेबल जो है वो 2 प्रोसेस के बारे में, कुकिंग एंड सर्विंग, और 5 डिफरेंट ऑर्डर्स है. नंबर्स अंदर जो दिए वो सारे टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन मिनट्स के, कुकिंग करने में कितना टाइम जाता है और सर्विंग करने में कितना टाइम जाता है. Now your job is to decide the optimal sequence जिससे तुम्हारे 5 के 5 ऑर्डर तुम मिनिमम टाइम में कवर कर सको. So let's focus on this table now. So I have just copied the table here from the previous slide. ये तुम्हारा question है. And now focus on the steps. So step number 1 is to identify the optimal sequence. Now optimal sequence मतलब क्या है? So optimal sequence मतलब तुम्हें ये जो ऑर्डर है पिज्जा, ब्रेड, पाव भाजी, बिरयानी, ब्राउनी, so ये पांचों जो ऑर्डर्स है, ये पांचों ऑर्डर्स तुम्हें साथ में आए हैं. So which order to process first, because पांचों ऑर्डर तुम्हें मिनिमम टाइम में कवर करके खत्म करना है. Okay, so for that you have to first decide कि कौन सी प्रोसेस पहले हो रही है. मींस कुकिंग और सर्विंग में ऑब्वियसली कुकिंग पहले होगा और सर्विंग बाद में होगा. Okay, so cooking जो प्रोसेस पहले होता है that you have to write on the left hand side, and जो प्रोसेस बाद में हो रहा है वो तुम्हें लिखना है on right hand side. और कोई भी क्वेश्चन में 2 से ज्यादा प्रोसेसेस या मशीन्स नहीं होंगे, प्लीज रिमेंबर. सो यहाँ पर अगर प्रोसेस में कुकिंग सर्विंग है, सो उससे ज्यादा तुम्हारा 2 से ज्यादा नहीं होगा. रिमेंबर वी आर अंडर द हेडिंग 2 मशीन सीक्वेंसिंग और 2 प्रोसेस सीक्वेंसिंग. सो सिर्फ 2 मशीन्स हो सकते हैं तुम्हारे पास यहाँ पे. सो जो भी फर्स्ट प्रोसेस हो रहा है वो तुम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे और जो भी सेकेंड प्रोसेस हो रहा है वो तुम राइट हैंड साइड पे लिखोगे. सो ये तुमने लिख दिया. नाउ तुम्हारे पास टोटल 5 आइटम है, यहाँ पर तुम 5 बॉक्स बना दोगे ऐसे. नाउ सर हमने क्यों किया है, लाइक
why on left hand side cooking and why on right hand side serving, so that you will come to know immediately right away. So now पूरे टेबल में सबसे मिनिमम नंबर फाइंड करो, पूरे टेबल में सबसे मिनिमम नंबर फाइंड करो. सो ये टेबल में सबसे मिनिमम नंबर है 1. नाउ चेक करो ये जो 1 है वो कुकिंग पे है कि सर्विंग पे है. सो इट इज ऑन सर्विंग. सो अगर वो सर्विंग पे है तो वो तुम्हें यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लिखना है. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस हियर सर्विंग हियर, सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि तुम्हें कौन सा आइटम, कौन सा ऑर्डर कहाँ पर लिखना है. सो दिस ब्राउनी हैज द मिनिमम नंबर 1 और वो सर्विंग पे है तो तुम ब्राउनी यहाँ पर लिखोगे. सो डिड यू ऑब्जर्व? और यहाँ पर तुम्हें ये टेबल के जस्ट नीचे ये स्टेप्स भी लिखने हैं. व्हाट आर वी राइटिंग हियर? मिनिमम एलिमेंट ऑफ एंटायर टेबल इज 1 which is of brownie for serving. Therefore putting brownie at the end on right hand side. So यहाँ पे brownie लिख दिया. Now जैसे ही तुम कोई भी एक आइटम को अपने सीक्वेंस के टेबल में लिख लेते हो, प्लीज उसको अपने क्वेश्चन से कैंसिल आउट कर देना. कैंसिल मतलब जस्ट पुट अ स्लाइट स्ट्रेट लाइन ओवर इट, सो दैट तुम्हें अभी ये ब्राउनी के नंबर्स को कभी भी रेफर नहीं करना है. ये 1, 6 जो भी थे नंबर्स वो इग्नोर करने हैं. यू आर नॉट सपोज्ड टू रेफर देम एवर अगेन बिकॉज ब्राउनी तुमने अपने सीक्वेंस में ऑलरेडी लिख दिया है. Now we are left with this 4 items. What is the next minimum number? So next minimum number is 2. Now 2 is for biryani और वो कौन से है? कुकिंग के प्रोसेस पे कि सर्विंग पे? तो सर्विंग पे. तो since it is on serving, तुम वापस राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करोगे. So बिरयानी तुम यहाँ पर लिखोगे ब्राउनी के पहले. And you will write next minimum element of entire table is 2, which is of biryani for serving. Therefore putting biryani on right hand side before brownie. So नीडलेस टू से तुम अपने एग्जाम में या सोल्यूशन में थोड़े वर्ड्स आगे पीछे कर सकते हो. स्टेटमेंट कैन बी बिट डिफरेंट बट मीनिंग शुड कम आउट द सेम. सो यहाँ पर मैंने लिखा है कि बिरयानी द नेक्स्ट मिनिमम नंबर इज 2 जो बिरयानी के लिए और सर्विंग प्रोसेस पे है. सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग बिरयानी जस्ट बिफोर ब्राउनी ऑन सर्विंग. सो राइट हैंड साइड. सो जैसे ही तुम बिरयानी यहाँ पे लिख देते हो तुम्हें वो पर्टिकुलर ऑर्डर को भी कैंसिल आउट कर देना है. नाउ फॉर यू दिस 2 and 12 हैव नो रेलेवेंस. रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स. सो बाकी के 3 एलिमेंट में चेक करो कौन सा मिनिमम एलिमेंट है. सो नाउ मिनिमम इज 4, बट ये 4 जो है वो 2 जगह पे आता है. यहाँ पर भी है, पिज्जा में और ब्रेड में भी है. सो इट्स ओके इवन इफ देयर इज अ टाई ऑन सर्टेन नंबर्स. अभी यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे सो जो ब्रेड पे 4 है वो कुकिंग पे है. सो कुकिंग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से आता है. सो तुम्हें ब्रेड यहाँ पर लिखना है. और जो पिज्जा पे 4 है वो सर्विंग पे है. सो सर्विंग के लिए अगर है तो तुम्हें राइट हैंड साइड से जो भी बॉक्स खाली है वहां पर लिखना है. सो इफ यू ऑब्जर्व ब्रेड मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा और यहाँ पर पिज्जा मैंने जो है वो राइट हैंड साइड पे बिरयानी के पहले लिखा. ओके सो यहाँ पर कैसे स्टेटमेंट लिखने हैं? नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट ऑफ एंटायर टेबल इज 4 which is of bread for cooking and pizza for serving. And therefore putting bread at the start on LHS. Observe this, putting bread at the start on left hand side and pizza on right hand side before biryani. So I hope you have followed this as well. So जैसे ही तुम ये दोनों आइटम यहाँ पे सीक्वेंस टेबल में लिख देते हो तुम्हें उन दोनों को भी क्रॉस आउट कर देना है. And now there is only one item left and there is only one box left. So needless to say पाव भाजी को तुम्हें रिमेनिंग जो बैलेंस स्पेस बची है वहां पर लिख देना है. सो पुटिंग रिमेनिंग ऑर्डर पाव भाजी एट रिमेनिंग प्लेस. सो लास्ट में जो एक बच जाता है तुम्हें नॉर्मली ऐसे ही स्टेटमेंट लिख के उसको खत्म कर देना है. ओके नाउ ये स्टेप 1 करने के बाद तुमने क्या किया एग्जैक्टली? व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव हियर? सो यू हैव डिसाइडेड योर ऑप्टिमल सीक्वेंस. ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस में अगर तुम अपने ऑर्डर्स को प्रोसेस करोगे सो जो टाइम लोगे वो मिनिमम से मिनिमम होगा. So this sequence says कि पहले शेफ को ब्रेड बनाना चाहिए, फिर पाव भाजी, फिर पिज्जा, फिर बिरयानी and then brownie. So in this order, in this sequence, if you process your order, your time taken will be minimum. So this entire slide represents step number 1, identifying the optimal sequence. So यहाँ पर basically if I have to summarize, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है but टेबल में minimum number find करते जाना है. और अगर वो मिनिमम नंबर फर्स्ट प्रोसेस पे है तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है और अगर सेकंड प्रोसेस पे है तो राइट हैंड साइड से लिखना है. सो आई होप यू हैव फॉलोड दिस स्टेप. लेट्स गो टू स्टेप नंबर 2. नाउ स्टेप 2 यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ. ये क्वेश्चन का टेबल है जो मैंने कॉपी किया है और ये जो प्रीवियस स्लाइड में जो ऑप्टिमल सीक्वेंस था वो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है जस्ट फॉर अ इजी रेफरेंस. नाउ स्टेप 2 इज प्रिपेयरिंग इन आउट टेबल. नाउ ये इन आउट टेबल मतलब क्या है? सो दिस इन आउट टेबल we have already discussed in the first example as well. So
यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर्स लिखने हैं रो हेडर्स में। कॉलम हेडर्स हमेशा तुम्हारे प्रोसेस रहेंगे। इट कैन बी मशीन AB, मशीन M1, M2, इट कैन बी एनी टू मशीन्स, बट यहाँ पर जो है कॉलम हेडर्स तुम्हारे हमेशा प्रोसेस या फिर मशीन्स रहेंगे। हमारे ये क्वेश्चन में कुकिंग एंड सर्विंग हमारी प्रोसेस है, कुकिंग पहले आएगा और सर्विंग बाद में आएगा। प्लीज डू नॉट राइट सर्विंग फर्स्ट एंड देन कुकिंग हियर, डू नॉट डू दैट। जो प्रोसेस पहले हो रहा है वो तुम्हें पहले लिखना है, और जो प्रोसेस सेकेंड हो रहा है वो तुम्हें बाद में लिखना है। And then under every process there will be 2 sub columns, in out। और याद रखना ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर तुमने फर्स्ट स्टेप में जो ऑर्डर डिसाइड किया है वो तुम्हें लिखना है यहाँ। सो डू नॉट राइट क्वेश्चन का ऑर्डर, मतलब क्वेश्चन ने देखो तुम्हें यहाँ पे पिज्जा फिर ब्रेड फिर पाव भाजी ऐसे दिया है, बट हमने यहाँ पर ऑप्टिमल सीक्वेंस क्या डिसाइड किया है, फर्स्ट ब्रेड देन पाव भाजी देन पिज्जा देन बिरयानी एंड देन ब्राउनी। सो वो ऑर्डर में तुम्हें यहाँ पर लिखना है। So I hope you have followed this particular instruction very well. Now you will always start with 0. So imagine that you are holding a stopwatch जहाँ पर तुम 0 से start कर रहे हो, and then you want to observe कि ये पूरे पांचों के पांचों ऑर्डर जो है वो मिनिमम से मिनिमम कितने मिनट्स में खत्म हो रहे हैं। So 0 से तुम स्टार्ट कर रहे हो। Now पहले हमेशा फर्स्ट प्रोसेस का टेबल खत्म करो, ऑलवेज फिनिश ऑफ फर्स्ट प्रोसेस टेबल। So 0 से स्टार्ट करेंगे। So let's say तुम्हारा जो शेफ है, there are 2 guys, शेफ है और एक सर्विंग के लिए तुमने बंदा रखा है। सो शेफ क्या करेगा, तो ब्रेड बनाना स्टार्ट करेगा 0 पे। नाउ ब्रेड को कुकिंग के लिए कितने मिनट्स जाते हैं, सो इट टेक्स 4 मिनट्स। सो 4 मिनट के बाद ब्रेड विल बी आउट, मतलब तुम्हारा शेफ 4 मिनट में ब्रेड बना के खत्म कर देगा, वो फ्री हो जाएगा। इमीडिएटली जैसे ही वो फ्री होगा वो पाव भाजी बनाना स्टार्ट करेगा। सो यहाँ पर देखो इन टाइम फॉर पाव भाजी इज 4, which is same as out time of previous job. So यही 4 को तुम यहाँ पर कॉपी करोगे, there is no break in between. So chef immediately 4th मिनट पे पाव भाजी बनाना स्टार्ट करेगा। now पाव भाजी को कुकिंग के लिए कितना टाइम लगता है, so it is taking 9 minutes. So 4 में तुम 9 को ऐड करोगे, रिमेम्बर ऐड करना है नंबर को, यहाँ पर 9 मत लिख देना। 4 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं प्लस 9 मिनट्स, so total is 13 मिनट्स पे पाव भाजी भी रेडी हो जाएगा। Now immediately जैसे ही पाव भाजी बन जाएगा, शेफ will be again free, तो 13th मिनट पे he will start preparing pizza. पिज्जा बनाने के लिए कुकिंग को कितना टाइम लगता है, सो 10 मिनट्स जाते हैं। सो 13 मिनट के बाद 10 मिनट्स ऐड कर दो, सो 23rd मिनट पे पिज्जा बन जाएगा। नाउ इमीडिएटली 23rd मिनट्स पे बिरयानी स्टार्ट कर देगा वो। सो बिरयानी स्टार्ट बनाने के लिए कुकिंग के लिए कितना टाइम जाता है, तो 12 मिनट्स, सो 23 plus 12, so this is 35 minutes. And then 35th minute पे he will immediately start preparing brownie, and 35th minute पे brownie बनाने का start करेगा, तो it takes 6 minutes to prepare, so 41 minutes. So you have to add the numbers from the question. So I hope you have followed the first process of cooking entirely. Now जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में हाईलाइट किया था, अगेन जैसे ही ब्रेड रेडी हो जाएंगे, सर्विंग वाला जो पर्सन है वो वेट नहीं करेगा बाकी सारे ऑर्डर बनने का, he will start serving the food. So सर्विंग वाला बंदा जैसे ही 4th मिनट पे ब्रेड रेडी हो गए, वो ब्रेड को सर्व करने के लिए स्टार्ट करेगा, प्रेजेंटेशन या व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, सो इट विल स्टार्ट सर्विंग द ब्रेड। 4th मिनट पे ब्रेड को सर्व करना स्टार्ट करेगा, बट ब्रेड को टोटल टाइम कितना चाहिए सर्व करने के लिए, सो इट टेक्स 5 मिनट्स। सो 4th मिनट पे अगर वो स्टार्ट करता है तो 9th मिनट पे वो काम खत्म होगा उसका, because it takes 5 minutes. तो यहाँ पर देखो in time 4 है, मैंने +5 किया, which is this number, ब्रेड पे सर्विंग का नंबर, ब्रेड पे सर्विंग का नंबर, so 5 को ऐड किया, यहाँ पर 9 आ गया। Now very critical step, जैसे ही ये 9 पे सर्विंग करने वाला बंदा फ्री हो जाता है, the person who is serving gets free on 9th minute, can it take the order of पाव भाजी? So answer is no, because पाव भाजी को अभी भी बनने में टाइम है। पाव भाजी बन के कभी बाहर आ रहा है, शेफ कभी बना के बाहर भेज रहा है, तो उसको 13th मिनट पे बाहर भेज रहा है। So 13 और 9, ऑब्जर्व दिस, 13 और 9 इन दोनों में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, so 13। so यहाँ पर तुम्हें इन टाइम में 13 लिखना है। सो 13 पे पाव भाजी इन होगा फॉर सर्विंग, मतलब सर्विंग करने वाला जो पर्सन है वो 13th मिनट पे पाव भाजी को सर्व करना स्टार्ट करेगा। नाउ पाव भाजी में सर्विंग का टाइम कितना है, 6 मिनट्स, तो 13 + 6 करो 19। नाउ 19 और 23 में मैक्सिमम कौन सा है, सो 23।
सो 23 पे सर्विंग करने वाला जो पर्सन है वो पिज्जा को सर्व करना स्टार्ट करेगा. सो पिज्जा को सर्विंग के लिए कितना टाइम जाता है? 4 मिनट. सो 23 प्लस 4 27. नाउ 27 एंड 35. तो 27 एंड 35 में मैक्सिमम नंबर इज 35. सो 35 लिख दो यहाँ पर. नाउ बिरयानी को सर्व करने में कितना टाइम जाता है? सो इट टेक्स 2 मिनट्स. सो 35 प्लस 2 37 मिनट्स. एंड 37 एंड 41. सो इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है? सो इट इज 41. सो 41 यहाँ पर लिख दो. और अभी ब्राउनी को सर्विंग के लिए कितना टाइम जाता है? तो इट टेक्स ओनली 1 मिनट. सो 41 के बाद ऐड करो 1. सो इट टेक्स 42 मिनट्स. एंड दैट्स हाउ यू एंड योर टेबल. सो टोटल ये पांचों ऑर्डर कुक करके सर्विंग करने तक टोटल तुम्हारा 42 मिनट्स होगा. And few important things to remember about this table. The first point is तुम्हारा टेबल का first job, first process in time हमेशा zero होगा. There will not be ever any question जहां पर ये zero के अलावा कोई और नंबर लेगा. तुम्हें हमेशा यहाँ पर zero से ही start करना है. And second, the most important point is जब second process का तुम in time decide करते हो ये सारे jobs में, okay, the second, third, fourth, fifth job के लिए, तो you have to decide maximum of these two. I hope you all can see these two circles. So out time of the first process or the out time of the previous job. तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो तुम यहाँ पर इन टाइम में लिखोगे. सिमिलरली 23 और 19 में मैक्सिमम 23 था तो वो लिखा. 35 और 27 में मैक्सिमम 35 लिखा. 41 एंड 37 में मैक्सिमम 41 है वो लिखा. ओके. नाउ ये क्वेश्चन को देख के प्लीज ये अजम्पशन या ये पैटर्न मत समझ लेना कि हर बार यहाँ पर जो नंबर होते हैं वो यहाँ पर आते हैं. नो, आई एम वेरी क्लियर विद दिस रूल. ये नंबर और ये नंबर दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो तुम्हें यहाँ पर लिखना है. कोई भी नंबर मैक्सिमम हो सकता है. So I hope this rule is very clear, and how to prepare in out table, that is also very clear to all of you. If you have any doubts, guys, please description box में तुम्हें Google form दिए जाते हैं, वहां पर तुम अपने doubts mention कर सकते हो. I will address all of your doubts. Now third step, the last step is you have to find total elapsed time. Now elapsed time मतलब process को total कितना time लगा. So ये टेबल देख के तुम इजीली मुझे बता सकते हो ये प्रोसेस को कितना टाइम लगा है. सो ये प्रोसेस को 42 मिनट्स लगे हैं. सो टोटल elapsed टाइम इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T एंड दैट इज 42 मिनट्स. सो ये टेबल का जो लास्ट का नंबर है सेकंड प्रोसेस का लास्ट का नंबर 42, दैट इज द टोटल elapsed टाइम. ओके. एंड आइडल टाइम. नाउ आइडल टाइम मतलब क्या? सो आइडल टाइम मतलब जो कुकिंग और सर्विंग की प्रोसेस है, जो कुकिंग करने वाला जो पर्सन है और जो सर्विंग करने वाला पर्सन है, उनको कितना टाइम ऐसे ही खाली बैठना पड़ा, दैट इज आइडल टाइम. सो वो अगर जानना है, सो देयर आर स्टेप्स टू सॉल्व इट. व्हाट इज द स्टेप आइडल टाइम फॉर कुकिंग अगर तुम्हें जानना है? सो यू हैव टू सेट टोटल elapsed टाइम, दैट इज T, minus all the numbers of cooking. Now if you observe 10, 4, 9, 12 and 6 से कहां से आए? तो ये तुम्हारे ओरिजिनल क्वेश्चन से 10, 4, 9, 12 and 6. ये जो टाइम है ये पांचों ऑर्डर को कुकिंग करने का टोटल टाइम है. जबकि प्रोसेस को टोटल कितना टाइम गया है? सो प्रोसेस को टोटल गया है 42 मिनट्स. सो 42 मिनट्स माइनस ऑल दिस टाइम, दैट इज 42 minus 41, and that is how 1 minute is derived. And idle time for serving, that is 42 minus all the numbers of this question serving के. So 42 minus 18, and that is equals to 24 minutes. So that is your idle time. So idle time कैसे तुम क्रॉस चेक करोगे? तुम्हें अगर idle time का मीनिंग जानना है, सो यहाँ पर ध्यान देना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो तुम्हारी पूरी जो प्रोसेस है वो 42 मिनट्स में एंड हो रही है, और कुकिंग वाला जो पर्सन है वो 41 मिनट्स. तुम ऑब्जर्व करो, 0 से उसने काम करना स्टार्ट किया था. 0 to 4, 4 to 13, 13 to 23, 23 to 35, 35 to 41. 41 मिनट्स तक ही इज कंटिन्यूअसली वर्किंग. उसने बीच में कहीं पे भी ब्रेक नहीं लिया है. बट 42 मिनट्स में तुम्हारी पूरी प्रोसेस खत्म हो रही है, और शेफ ने जो है वो अपना काम 41 मिनट्स में खत्म किया. इट मींस उसने लास्ट का 1 मिनट ही हैज लेफ्ट आइडल. सो दैट इज आइडल टाइम 1 मिनट. नाउ सर्विंग वाला जो पर्सन है वो पूरे 42 मिनट्स में कंटिन्यूअसली काम नहीं कर रहा है. इफ यू ऑब्जर्व, उसने अपना फर्स्ट काम जो गार्लिक ब्रेड को जो सर्व करने का काम है वो 4th मिनट पे स्टार्ट किया. सो यहाँ पर 4 मिनट उसका आइडल टाइम हो गया. देन जैसे उसने वो सर्व करके खत्म कर दिया 9th मिनट पे, उसका सेकेंड ऑर्डर आया 13th मिनट पे. सो 9 और 13 में गैप है 4 मिनट्स का. सो दैट इज अनदर 4 मिनट्स ऑफ आइडल टाइम. सो 4 मिनट स्टार्ट का, 4 मिनट्स यहाँ पर 8 मिनट्स.
another 4 minutes 19 और 23 के बीच में उसने रेस्ट किया, so that is another 4 minutes, so that is out 12 minutes. Then 27 से 35, that's another 8 minutes, so total 20 minutes. And then 37 से 41, another 4 minutes, so 24 minutes. And then 42 पे उसने end किया process. So 24 minutes ये उसका idle time है, and that's how you can cross verify. बट अगर तुम्हें क्विकली आइडल टाइम कैलकुलेट कर देना है, तो ये तुम ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, टोटल इलेप्स टाइम माइनस क्वेश्चन के सारे नंबर्स, टोटल इलेप्स टाइम माइनस क्वेश्चन के सारे नंबर्स का टोटल, एंड दैट्स हाउ यू विल डिराइव योर आइडल टाइम. नाउ मेजर डाउट, सर हमें सोल्यूशन लिखना कैसे है? सो ये पूरा एग्जांपल जो मैंने डिस्कस किया उसका ये सोल्यूशन है. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू राइट इन योर बुक्स एज वेल एज इन योर एग्जाम. The first step is optimal sequence, so you will not copy the table given in your question, you will directly start by giving heading optimal sequence, और फिर तुम ये जो है as it is ऐसे तुम कॉपी करोगे टेबल को. तुमने जो ऑप्टिमल सीक्वेंस डिसाइड किया है वो तुम यहाँ पर लिखोगे, और नीचे सारे स्टेप्स के कौन सा ऑर्डर तुमने पहले लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है कि राइट हैंड साइड पे लिखा है, सो दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. देन यू विल प्रिपेयर द इन आउट टेबल, just what we discussed in the previous slide as well, and then you will write total elapsed time and the idle time for both the processes, and that's how we are going to represent your solution. So I hope there is no confusion at all in how to write your solution. Okay, you can just pause the video and look in bit of details about each and every step. Okay, let's go to the next example. Now these are the example taken from our textbook. So we have 5 jobs, each of which has to go through from machine A and B. Read this M1 and M2 as machine A and B. There is a typo error in the textbook. In the order M1, M2, in the order A and B. So first सारे jobs को machine A में जाना है और फिर सारे jobs को machine B में जाना है. Processing time in hours are given below. So 5 job है, 2 machine है A and B, और यहाँ पे अलग-अलग numbers दिए हैं. Determine a sequence of these jobs that will minimize the total elapsed time T. Idle time for machine M1 and idle time for machine M2. So if you remember how to write a solution, so you will give heading optimal sequence and order. यहाँ पर देखो मैंने clear cut तुम्हें flow बताया है. अगर first machine A में जा रहा है तो machine A को तुम left hand side पे लिखोगे और machine B को right hand side पे लिखोगे. Okay. Now minimum, सबसे minimum element कौन सा है? So that is 1. किस पे है? Job 4 पे, machine B पे. So job 4 तुम B पे लिखोगे तो it will be on right hand side. So minimum element equals to 1, which is at 4 on B. Therefore, putting 4 at the end on right hand side. So I hope you are following this. Now, जैसे ही तुम 4 अपने sequence में लिख देते हो, immediately तुम अपने question में 4 को cut out कर दो, so that तुम ये फिर 5 को देख के confuse ना हो. Now remaining jobs में minimum element कौन सा है? So remaining jobs में minimum element है 2. अब 2 दो जगह पे, job 3 पे भी और 5 पे भी है, but अलग-अलग row में है. So confusion नहीं है. ये जो 5 पे 2 है वो मशीन A के लिए है, सो 5 तुम कहां पर लिखोगे? तो मशीन A के तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पे. और जो ये 3 पे 2 है वो मशीन B पे है, सो वो तुम B के साइड राइट हैंड साइड पे लिखोगे. सो यू विल राइट 5 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 ऑन राइट हैंड साइड, एंड यू विल राइट अ डिटेल्ड प्रोसीजर हियर. नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट इक्वल्स टू 2, व्हिच इज एट 3 ऑन B and at 5 on A. Therefore putting 3 before 4 के पहले लिखा है तुमने ये, and 5 at first on left hand side. So I hope you are following how to write the statements here. So जैसे ही तुम 3 और 5 यहाँ पर सीक्वेंस में लिख देते हो, immediately 3 और 5 को तुम क्रॉस आउट कर देना, so that तुम वो नंबर्स को अभी वापस रेफर ना करो. Now we are left with 2 jobs. अब यहाँ पर मिनिमम क्या है? तो मिनिमम is 3, और वो 3 सेम रो में दोनों जॉब्स पे है. So in such a case, when you have minimum number in same row, तुम कोई भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हो. लाइक तुम 1 और 2 लिख सकते हो, यहाँ पर 1 और 2. जैसे ये मशीन ए पे था तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से लिखा है 1 एंड देन 2, या फिर तुम 2 पहले लिख के 1 बाद में लिख सकते थे. सो इट्स लाइक अ अल्टरनेट सॉल्यूशन. सो प्लीज रिमेंबर, व्हेन यू हैव सेम नंबर इन सेम नंबर, देयर इज अ टाई ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर इन सेम रो, तुम कोई भी जॉब पहले लिख सकते हो, कोई भी जॉब बाद में लिख सकते हो. ये वीडियो के एंड पे मैंने 3 अलग-अलग एग्जांपल भी मैं डिस्कस करूंगा, जिससे ये टाइम का जो ऑप्शन है जहां पर सेम नंबर्स आते हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगे. बट आई होप तुम्हें यहाँ पर समझ में आ रहा है. 3, 1 और 2 दोनों पे था और मशीन ए पे था, तो लेफ्ट हैंड साइड से लिखा 1 और फिर 2. इट डजंट मैटर मैंने अगर 2 पहले लिखा होता और 1 बाद में लिखा होता तो भी तुम्हारे आंसर पे कोई भी फर्क गिरता नहीं. एंड लुक एट द वे आई हैव रिटन द सॉल्यूशन. नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट इक्वल्स टू 3, which is at 1 on A and at 2 on A.
So 1 पे भी और 2 पे भी और दोनों मशीन A पे. Therefore putting 1 and 2 next to 5 on LHS. And by this we covered all the 5 jobs. So first step is complete here. Second step is to prepare in-out table. इन-आउट टेबल बनाते टाइम पे कुछ पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखना है, जैसे कि जॉब जो तुम लिख रहे हो यहाँ पर प्लीज 1 2 3 4 5 मत लिखना, अदरवाइज पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर रॉन्ग दिया जाएगा. सो प्लीज ऑब्जर्व, तुम जॉब्स में जो सीक्वेंस लिखोगे दैट विल बी फ्रॉम स्टेप नंबर 1 5 1 2 3 and 4 5 1 2 3 and 4. देन अनदर थिंग टू रिमेंबर इज 0 से स्टार्ट करोगे एंड देन यू विल प्रिपेयर फर्स्ट मशीन ए का पूरा टेबल and then machine B का पूरा टेबल. Okay, don't be in a hurry to complete. पहले ये machine A और B पूरा complete first row करते हैं, फिर second row B का complete करते हैं, A and B का, then third row A and B का complete करते हैं. No, first machine A के पांचों और jobs को complete करो, then machine B पे आओ. So if we start 0 से job 5, so job 5 machine A कितना time है? 2 hours. So 0 plus 2 2 hours. 2 यहाँ पर copy करो. Job 1. So job 1 machine A 3 hours. So 2 plus 3 5. Then job 2. So 5 के job 2 पे कितना है? 3 hours. So 5 plus 3 8. 8 को नीचे copy करो. Then 3. So 3 पे machine A कितना है? 7. So 8 plus 7 15. 15 को नीचे copy करो. And job 4. So job 4 takes 5 hours on machine A. So 15 plus 5 20. So I hope you have followed this. Once you are done with machine A, start with machine B. Machine B में पहला जो नंबर है ये 2, वो यहाँ से कॉपी करना है. So जैसे ही job 5 machine A से बाहर आएगा, machine B में तुम उसको इन कर दोगे. Now job 5 machine B, so it is 5. So 2 plus 5 7. Now 7 और 5, remember this is the most critical step. 7 और 5 में maximum कौन सा है? So it is 7. So 7 तुम यहाँ पर लिखोगे. And you know the logical reason behind it. Job 5 तुम्हारा machine B पे खत्म कब हो रहा है? So 7 hours पे. Job 1 machine A से out कब हो रहा है? 5th hour पे. So obviously machine B जो next job है वो कब ले पाएगा? 7th hour पे. Because job 1 5th hour पे बाहर आके खड़ा भी है तो वो machine भी उसको अंदर नहीं ले पाएगा. Because वो अभी भी 5th hour पे job 5 को process कर रहा है. So job 5 7th hour पे खत्म होगा, तभी immediately वो job 1 को अंदर ले लेगा प्रोसेस करने के लिए. So 7 hour. And shortest trick to remember this is maximum of 2 numbers. ये वाला number and ये number. इन दोनों में से maximum कौन सा है वो तुम यहाँ पर लिखोगे. So 7 पे job 1 अंदर गया, job 1 पे machine B कितना है? number 6. So 7 plus 6 13. 8 और 13 में maximum क्या है? So 13 लिखा यहाँ पर. Job 2 machine B, how much is the time? So 4. So 13 plus 4 17. 17 और 15 में maximum 17. So वो लिख दिया. Job 3 machine B 2. So 17 plus 2 19. और 19 और 20. 19 और 20 इन दोनों में maximum क्या है? So 20. So 20 लिखा. Job 4. Job 4 पे machine B is 1. So 1 ऐड करके यहाँ पर 21 लिख दिया. So I hope you have again followed the in-out table very clearly. And once you are done with in-out table, step 2 is over. Step 3. Step 3 says you have to find 3 things. Total elapsed time. So total elapsed time is very simple. The last number of this table, 21 hours. Ideal time for machine A. So ideal time for machine A कैसे निकालोगे? 21. That is total elapsed time minus machine A के जो भी numbers दिए वो सबका total. 3 plus 3 plus 7 plus 5 plus 2. So that amounts to 20. 21 minus 20. That is 1 hour. और अगर तुम्हें वो क्रॉस टैली करना है ये टेबल से तो कैसे करोगे? टोटल प्रोसेस को, पूरी की पूरी प्रोसेस को खत्म होने में 21 आवर्स लगे. तुम्हारा मशीन है 0 से कंटिन्यूस काम कर रहा है. 0 to 2 2 to 5 5 to 8, कहीं पे भी गैप नहीं है. 20th आवर पे उसका काम खत्म हो गया और टोटल प्रोसेस 21 आवर चला. तो लास्ट का जो 1 आवर है वो मशीन है आइडल पड़ा रहा. Idle time for machine B. So what is the shortcut here? 21. That is total elapsed time minus machine B के जो भी question ने numbers दिए हैं वो सब ऐड कर दो. 6 plus 4 plus 2 plus 1 plus 5. So 6 plus 4 plus 2 plus 1 plus 5. So 21 minus 18 and that gives you 3 hours. And how to cross tally this 3 hours? So if you observe machine B starting में 2 hours idle पड़ा रहा. जब तक 5th job उसके पास नहीं आता तब तक वो ऐसे ही starting में पड़ा रहा. तो that is 2 hours of idle time. फिर 7 पे आउट, 7 पे इन, 13 पे आउट, 13 पे इन,
17 पे आउट, 17 पे इन, तो यहाँ पर कहीं पे भी गैप नहीं है, कंटिन्यूस मशीन भी काम कर रहा है। नाउ लास्ट जो है 19 पे आउट है, जॉब 3 19 पे आउट है और जॉब 4 20 पे इन हुआ, तो यहाँ पर मशीन बी को 1 घंटा वेट करना पड़ा। 19 पे मशीन बी ने अपना काम खत्म कर दिया और 20th आवर पे नेक्स्ट जॉब चालू किया। So 1 hour of idle time and starting at 2 hours. So 2 plus 1 3, and that's how 3 hours of idle time has been derived. So that is the way to cross tell your answer. So I hope you have understood this example as well. And जैसे मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पर alternate sequence है 1 और 2 के बदले 2 और 1, बाकी के सारे जो jobs है वो as it is यहाँ पे है। Let's go to the last example. So a book has 1 printing machine, 1 binding machine, and manuscripts of 7 different books. The time required for performing printing and binding operation for different books are shown below. So 7 book है और 2 machine है, printing machine and binding machine. और यहाँ पर clearly लिखा है printing machine पहले and then binding obviously. Decide the optimum sequence of processing of books in order to minimize the total time required to bring out all the books. Okay, so first step is to decide the optimal sequence. यहाँ पर first printing and then binding. Even if question is not so clear about it, first row में जो दिया है वो तुम्हें पहले लेना है, second row में जो दिया है वो तुम्हें बाद में लेना है. And थोड़ा सा common sense कुछ question में apply करना कि obviously अगर printing नहीं होगा जब तक book, तब तक तुम उसको binding नहीं कर सकते. So first process has to be printing and then second process has to be binding. Now minimum element of this entire table is 20, which is on printing, तो वो तुमने left hand side पे लिख दिया, तो उसको तुम cross out कर दो. Then next minimum is 24, जो fourth book के लिए है और वो binding पे है, तो वो तुमने right hand side पे लिख दिया, उसको भी cross out कर दो. Now next minimum is 25, ये रहा 25 तुम्हारा job book number 6 के लिए printing पे है, तो वो तुमने left hand side पे लिख दिया. Then उसको भी cross out कर दो. Next minimum is 40, जॉब बुक नंबर 2 एंड बुक नंबर 7. 40 यहाँ पर है, देखो बाइंडिंग पे, दोनों बाइंडिंग पे. तो एज वी डिस्कस्ड, अगर दोनों सेम रो में आते हैं तो तुम कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो. तुम देखो यहाँ पर मैंने 2 लिखा और फिर 7 लिखा ऑन लेफ्ट हैंड साइड, बाइंडिंग के साइड पे. यू कुड हैव रिटन 7 हियर एंड 2 हियर. तुम्हारे फाइनल आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता. सो प्लीज रिमेंबर दिस. 2 7 या फिर 7 2 कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो तुम. And you can cancel out 2 and 7 now. Now we're left with book 3 and book 5. Minimum is 43, which is on binding. So 3 यहाँ पर लिख दिया. And once you are writing that, cancel that out, and now you're left with only book number 5. So तुमने वो चीज यहाँ पर लिख दिया. And this is how you decided your optimal sequence. You can just pause the video to understand how to write the statements below this table. Meanwhile, I'm just going ahead with the next step, in out table. Now, I would sincerely recommend my students to try in out table once on their own and then match your numbers here, since we have already discussed into example how to prepare in out table. Nonetheless, जिनको अभी भी नहीं समझ में आया है in out table कैसे बनाना है, I'm just repeating the steps again. So, बुक का ऑर्डर जो है वो तुम्हें स्टेप नंबर 1 से लिखना है, 1 6 5 3 2 7 4. तो ये तुम ऑब्जर्व करो, मैंने वही ऑर्डर में लिखा है यहाँ पे. प्रिंटिंग पहले, देन बाइंडिंग, और इन आउट 2 कॉलम उसके अंदर. 0 से स्टार्ट करोगे. ओके, बुक नंबर 1. सो बुक 1 में प्रिंटिंग में 20. सो यहाँ पर तुम 20 यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे 20 आवर्स. देन 20 नीचे कॉपी करोगे तुम 6 पे. नाउ 6 पे प्रिंटिंग को 25 आवर्स जा रहे. सो 20 प्लस 25 दैट गिव्स यू 45. 45 कॉपी करोगे 5. सो 5 पे कितना है प्रिंटिंग का टाइम? So that is 110. So 45 plus 110. So that gives you 155. 155 नीचे कॉपी करोगे. Book 3. So book 3 पे printing is 50. So 155 plus 50. That gives you 205. 205 कॉपी करके यहाँ पर लिखोगे. Now book 2 it 60. So 205 plus 60. That gives you 265. 265 कॉपी करोगे. Now 7. Book 7 पे 55. So 265 plus 55. 320 कॉपी करोगे. एंड देन फोर्थ बुक. सो फोर्थ बुक में प्रिंटिंग में टाइम है 30. सो 320 प्लस 30 350. सो फर्स्ट पूरा प्रिंटिंग का तुमने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया. नाउ यू स्टार्ट विद बाइंडिंग.
बाइंडिंग में फर्स्ट इन टाइम जो है वो यहाँ का आउट टाइम वो कॉपी करते हैं हम 20, तो यहाँ पर 20 पे फर्स्ट जॉब तुम्हारा चालू हो जाएगा. नाउ बुक वन बाइंडिंग टाइम इज 25, सो 20 प्लस 25 45. नाउ ये जो 45 है ये और ये जो 45 है ये, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, तो यहाँ पर दोनों सेम है, सो 45 यहाँ पर लिख दोगे. नाउ बुक 6 पे बाइंडिंग टाइम कितना है 35, सो 45 प्लस 35 दैट गिव्स यू 80 और 155 में मैक्सिमम क्या है, तो 155, सो 155 यहाँ पर लिखोगे. 155 लिखा. फिर बुक 5 पे बाइंडिंग में कितना है नंबर 80, तो 155 प्लस 80 235. नाउ 235 और 205 में मैक्सिमम इज 235, सो 235 यहाँ पे लिखा. बुक 3 में बाइंडिंग इज 43, सो 235 प्लस 43 278 और 265 में मैक्सिमम क्या है, सो इट इज 278, सो 278 यहाँ पे लिखा. नाउ बुक 2 में बाइंडिंग चेक करो. बुक 2 में बाइंडिंग इज 40, so 278 plus 40 that is 318 और 320 में मैक्सिमम इज 320, so 320 यहाँ पर लिखा. नाउ बुक नंबर 7 बाइंडिंग इज 40, so 320 plus 40 that is 360. नाउ 360 और 350 में मैक्सिमम इज 360, so वो लिखा. एंड बुक 4 is a 24, so 360 plus 24 and that's how it is 384. So in our table is also over. The last step is to find total elapsed time, that is capital T, so that is 384 hours. Then ideal time for printing, so ideal time कैसे find करोगे, T capital T that is 384 minus printing के ये सारे जो numbers हैं, ये सारे numbers का total minus कर दो. So 384 minus all these numbers, if you check ये सारे जो 20 60 50 30 ये सारे numbers जो है वो question से ही लिए हैं हमने. 384 minus 350 and that is how 34 hours has been derived. And ideal time for binding 384 minus सारे numbers जो binding के question ने दिए थे 25 40 43 24 80 35 and 40 सारे numbers का total, so 384 minus 287 and that's how you get 97 hours. And you can again cross tally by checking from this table as I taught you earlier कि कैसे cross tally करना है. So 3 यहाँ पर printing machine 0 से चालू होकर continuous 350 hours तक चल रहा है, बट पूरा प्रोसेस 384 आवर्स तक चल रहा है. सो लास्ट के जो 34 आवर्स है तुम्हारा प्रिंटिंग मशीन एज इट इज आइडल पड़ा रहा. और बाइंडिंग में कैसे चेक करोगे, सो बाइंडिंग में स्टार्टिंग के जो है 20 आवर्स आइडल पड़ा रहा, फिर 45 to 45 कोई गैप नहीं है, 80 to 155 यहाँ पर गैप है, तो ये आवर्स, फिर 318 से 320 यहाँ पर गैप है, ये 2 आवर्स. सो 20 80 से 155 का जो गैप है वो, और 318 से 320 2 आवर्स का जो गैप है वो, ये सबको ऐड कर दो, यू विल गेट 97 आवर्स एज द टोटल. बट क्रॉस टैली लास्ट में करना. इफ यू वांट टू क्विकली फाइंड आउट आइडियल टाइम, यू कैन जस्ट से टोटल elapsed टाइम दैट इज 384 माइनस टोटल ऑफ ऑल दिस नंबर्स, दैट्स हाउ यू विल गेट योर आइडियल टाइम. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जांपल एज वेल. नाउ कुछ एग्जांपल छोटे छोटे मैं डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट फॉर स्टेप नंबर 1. जो टाई होता है नंबर्स पे, तब तुम कैसे अपना सीक्वेंस डिसाइड करते हो. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल जहां पर ये नंबर्स दिए हैं, मशीन है, मशीन भी, और 5 जॉब है, और तुम्हें फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना है, ऑप्टिमल सीक्वेंस डिसाइड करना है. तो तुम कैसे करोगे, सबसे मिनिमम, सबसे पहले तो ऑर्डर है ए एंड बी, ए ऑन लेफ्ट हैंड साइड, बी ऑन राइट हैंड साइड. सो यहाँ पर सबसे मिनिमम नंबर है 1 जो तुम्हारा जॉब 2 पे है, सो तुम जॉब 2 यहाँ पर ए के तरफ लिख दोगे एंड यू विल कैंसिल आउट दिस. देन नेक्स्ट मिनिमम इज 2, तो ये जो 2 है 2 जगह पे आ रहा है, ये रहा, ए मशीन ए पे भी है और मशीन बी पे भी है. सो जॉब 1 को तुम लिखोगे मशीन ए पे और जॉब 5 को तुम लिखोगे मशीन बी पे. एंड यू कैन नॉट इंटरचेंज दिस. प्लीज रिमेंबर यहाँ पर रो अलग अलग है, तुम ये नहीं बोल सकते टाई था तो 5 यहाँ पर लिखा और 1 यहाँ पर लिखा. नो, यू कैन नॉट डू दैट. 1 हैज टू बी हियर बिकॉज इट इज ऑन ए एंड 5 हैज टू बी हियर बिकॉज इट इज ऑन बी. So यहाँ पर इंटरचेंज का ऑप्शन नहीं है. And once you write this, cancel this out. Next minimum is 3, which is on A. तो वो तुमने यहाँ पर लिख दिया, job 4 यहाँ पर लिख दिया, and then remaining उसको cancel out कर दो, and then remaining is job 3. तो वो बची हुई जगह पे तुमने copy कर दिया. So I hope you have understood this example. Let's take the next example. मैंने कुछ numbers change किए यहाँ पर सिर्फ. Again 2 machines 5 jobs. So minimum अगर observe करोगे तो 2 है. अभी 2 जो है यहाँ पर ये रहा 1 and 2 जॉब पे, और यहाँ पे ये रहा 5 पे. सो यहाँ पर 2 अल्टरनेटिव मिलेंगे हमें. सो यहाँ पर जो सेम रो में 2 है 1 and 2 जॉब के लिए, तो तुम इसको कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो. यू कैन राइट 1 and 2 और यू कैन राइट 2 and 1.
So 2 and 1 या फिर 1 and 2. Did you observe? एंड जो जॉब 5 पे 2 है वो तो मशीन बी पे है, सो नीडलेस टू से वो तुम्हारा राइट हैंड साइड पे आएगा. सो आई होप यू हैव फॉलोड दिस ऑल्टरनेटिव एज वेल. Once you write this, you have to cancel out all these jobs, and then remaining job में minimum is 3, which is on machine A. Sorry, which is on machine A for job 4. तो job 4 को तुमने यहाँ पर लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड से, एंड उसको कैंसिल आउट कर दो, एंड देन job 3 is remaining, जो बाकी के जगह पे लिख दिया. So I hope you have followed this sequencing very clearly. Let's take a last example. So यहाँ पर तुम अगर ऑब्जर्व करोगे, so सबसे मिनिमम, let's take A and B is the sequence. A और A में पहले जाएगा और फिर B में जाएगा. So now minimum, सबसे मिनिमम नंबर यहाँ पर कौन सा है, तो 1, which is on machine A. So 2 को तुमने लेफ्ट हैंड साइड से लिख दिया और उसको कैंसिल आउट कर दो. Now next minimum is 2. Now 2 जो है वो जॉब 1 पे भी है, जॉब 4 पे और जॉब 5 पे भी है. Now जॉब 1 पे जो 2 है मिनिमम, वो मशीन A पे है. सो 1 तुमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, और 4 और 5 मशीन बी पे है तो वो तुमने राइट हैंड साइड पे लिख दिया. नाउ सिंस 4 और 5 पे जो मिनिमम है वो सेम रो में आते हैं, मशीन बी में ही आते हैं, तो तुम उसको इंटरचेंज कर सकते हो. लाइक 4-5 को तुम 5 and 4 लिख सकते हो. सो ये तुमने इंटरचेंज करके भी तुम अगर लिखते हो तो तुम्हारे फाइनल आंसर पे कोई भी डिफरेंस आता नहीं. And once you write in your sequence table, cancel out those jobs, and now you're left with only job number 3. तो वो तुम्हारे remaining जगह पे आ जाएगा. So I hope तुमको ये तीनों example एकदम ही clear हो रहे हैं. I have tried my level best to make things pretty much clear कि कौन से example या कौन से case में तुम्हें कैसे sequence को set करना है. Okay, so please students don't forget to go to description box and fill up the Google form, because I am tracking all your attendance as well as all your doubts very closely. If you don't convey your doubts to me, I will never be able to resolve them. So after completing this video, please fill up that attendance form and write all your doubts very clearly. And one more important thing, वेरी क्लियरली, प्लीज ऑब्जर्व वेरी क्लियरली कौन से ऑर्डर में तुम अपने मशीन को, कौन अपने जॉब्स को प्रोसेस कर रहे हो. लाइक मशीन ए एंड देन मशीन बी. जैसे वो कुकिंग और सर्विंग का एग्जांपल था, कुकिंग पहले एंड देन सर्विंग. तो ऑर्डर को प्लीज ध्यान देना. इफ क्वेश्चन इंटरचेंजेस द ऑर्डर लाइक मशीन बी एंड देन मशीन ए, तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है उस हिसाब से आगे बढ़ेगा. लाइक अगर समझो यहाँ पर मशीन ए और बी में क्वेश्चन ये बोलता है कि मशीन बी में सारे जॉब्स पहले जा रहे हैं और फिर मशीन ए में, तो तुम लेफ्ट हैंड साइड पे बी लिखोगे और राइट हैंड साइड पे ए लिखोगे. जो भी मशीन में पहले प्रोसेस हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, और जो भी मशीन में बाद में प्रोसेस हो रहा है वो राइट हैंड साइड पे आएगा. और तुम्हारा इन आउट टेबल भी तुम वैसे बनाओगे, जो मशीन में पहले प्रोसेस हो रहा है. सो मशीन बी में अगर पहले प्रोसेस हो रहा है तो मशीन बी को तुम इन आउट टेबल में पहले लिखोगे और फिर मशीन ए को लिखोगे. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट थिंग, इट इज वेरी क्रिटिकल पॉइंट. एंड विद दिस आई कंप्लीट टू मशीन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम. एंड डिस्क्रिप्शन में तुम्हें अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. डाउनलोड दैट पीडीएफ. आई विल बी पुटिंग अप दैट पीडीएफ and its solution on the group as well. Practice those solutions and then I will be taking up your doubts in live sessions. Thank you everyone.